جناب اسپیکر صاحب، گورنر صاحب کے اسپیچ پر چند اہم امور پر جو میں حوض میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر حکومت کو چاہیے کہ فوری اقدام کر کے عوامی مسائل کو حل کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج حیدرآباد میں بلدی برقی آب رسانی مسائل ایک بے شمار مسائل ہے جو حل طلب ہے، اور اس کی وجہ سے عوام کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے کہ محکمہ برقی کا الیکٹرک کا مسئلہ ہے، آج ایک سال سے مسلسل پرانے شہر میں ساؤتھ زون میں خصوصاً شہر کے دیگر حلقوں کے علاوہ پرانے شہر میں مسلسل روزانہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے لائٹ بن جاتی۔ ایک سال سے مسلسل چل رہا ہے سلسلہ۔ اس سلسلے میں نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب افطار پارٹی میں چیف منسٹر صاحب کو توجہ دلائے تھے، پھر اس کے بعد 1-2-4 دن ٹھیک رہا۔ پورا رمضان پچھلے سال کا ہمارا اندھیرے میں گزارنا پڑا۔ رمضان کے بعد بھی یہی حالت برقرار رہی۔ آج محکمہ برقی کی طرف سے شہر میں پاور سپلائی کے لیے کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ کئی بار توجہ دلائے، آج بچوں کے امتحانات ہو رہے، ایگزامز ہو رہے، لیکن پاور سپلائی میں جو سو انٹرپشن ہوتا اور کئی گھنٹوں تک لائٹ بند ہو جاتی۔ نہ وہاں پر کئی ٹرانسفارمروں کو چینج کیا جاتا، نہ وہاں کے جو منظورہ سب اسٹیشنز ہے اس کو فوری کام کا آغاز کر کے یہ پاور کا جو شارٹیج ہے اس کو دور کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا جاتا۔ آج برقی کی صورتحال انتہائی سنگین ہے ہمارے حلقوں میں، ساؤتھ زون میں خصوصاً، اور اس کے لیے سب اسٹیشن اور ٹرانسفارمر کو انہانس کرنے کے لیے ہم نے تجاویز پیش کیے، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں۔ یہاں پر لائن ڈال کے جس طریقے سے مانجرا کے آپ گوداوری کا پانی لا کے مانجرا میں چھوڑ رہے ہیں، اسی طریقے سے کرشنا کے پانی کو لا کے ہمایت ساگر عثمان ساگر میں چھوڑے۔ آج عثمان ساگر کا پانی، ہمایت ساگر کا پانی پرانے شہر کو سپلائی نہیں ہو رہا ہے، اس کو بھی روک دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج یہ عالم ہے کہ شاہین نگر کا علاقہ، راجندر نگر کا علاقہ جہاں پانی کی قلت ہے، پانی کے ٹانکیاں بن گئے، لیکن وہاں کے کام کی تکمیل کے بعد پانی کو پہنچانے کے لیے بہت سارے اقدامات حکومت کی طرف سے نہیں کیے گئے۔ آج یہ عالم ہے کہ لائٹ سے محروم ہے، پانی سے محروم ہے لوگ، اور یہ شہر حیدرآباد میں یہ سلسلہ ایک سال سے چل رہا ہے، ایک سال سے مسلسل چل رہا ہے۔ بلدیہ کا یہ عالم ہے کہ حیدرآباد میں کچرے کی صفائی، کچرے کی نکاسی نہیں ہوتی، سینیٹیشن کا اسٹاف نہیں ہے، روزانہ جو سویپنگ ہوتی ہے وہ صرف مین روڈوں پر کرتے ہیں، بستیوں میں کوئی صفائی نہیں ہوتی، اور آج اسٹریٹ لائٹ کوئی کام نہیں کرتی۔ مکمل طور پر بلدیہ کا کمپلینٹ تو ہم کو 3-4 سال سے یہ مسائل درپیش ہیں کہ حیدرآباد، شہر حیدرآباد کے علاقے میں کچرے کی نکاسی، کچرا اٹھاتے نہیں، گاربیج کی لفٹنگ نہیں ہوتی، سویپنگ نہیں ہوتی، اور اسٹریٹ لائٹ وہاں پر کام نہیں کرتے۔ آج سینیٹیشن میں اسٹاف کم ہے، اس کو پر نہیں کیا جاتا، اس میں اضافہ نہیں کیا جاتا۔ بلدیہ کی صورتحال بھی انتہائی سنگین ہے، ٹیکسوں میں اندازن اضافہ کر دیا گیا، ایسے انداز سے ٹیکس وصول کی جا رہے ہیں، اسکولوں کو قفل ڈال دیے، مکانات کے سامان کو ضبط کر دیے، ہوٹلوں کو بند کر دیے۔ یہ تیزی جو اصولات میں بہت کی جاتی ہے، لیکن عوام کو بلدی سہولتیں پہنچانے کے لیے یہ اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے کہ صفائی بے حد ضروری ہے۔ بیماریوں کا اضافہ ہو رہا ہے مچھروں کی کثرت سے لیے، سوائن فلو کے کیسز ہو رہے ہیں، ڈینگو کے کیسز ہو رہے ہیں، دواخانے میں علاج کے لیے جاتے ہیں، دواخانے میں کوئی معقول انتظام نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں۔ اس پہ حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ قانون کے تحت ٹریفک پولیس کی طرف سے غریب لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ایسا ظلم جیسے کہ آج تک کبھی یہاں پر ایسا ظلم نہیں ہوا۔ فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والے، ملگیوں میں کاروبار کرنے والے اگر کوئی سامان باہر رکھتے ہیں تو ٹریفک پولیس آ کر ان کو کیس کرتی ہے، چالان کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ صبح 7 بجے کورٹ کو آ جائیں، کاؤنسلنگ کرنا ہے۔ کاؤنسلنگ کے بہانے کورٹ کو بلا کر 3-3.5 ہزار روپے جرمانہ بھرتے ہیں، اور اس کے بعد 3 دن کی جیل بھجا دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک شہری جو اس کا حق ہے، کاروبار کر رہا ہے، ملگی میں بیٹھ کے لائسنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنی ملگی کے سامنے اگر کچھ سامان رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے،
ऐसे झूठे चालान करके हमारे एरिया में तक बेशुमार लोगों को जेल को भेज दिया गया है। आप अंदाजा कीजिए, जो कारोबार करने वाले पुलिस स्टेशन की सीढ़ी नहीं चढ़े, उन लोगों को 2-2 दिन 3-3 दिन जेल को भेजा जा रहा है। आज तक हैदराबाद में यहां पर ऐसा नहीं हुआ। मैं हुकूमत से कहूंगा, ये जेल को भेजने की तहरीक और जेल को भेजने के इक़दाम को फौरी बंद करे। और गरीब लोगों को जो कारोबार करते हैं, हजारों लोगों का, लाखों लोगों का रोजगार फुटपाथों से वाबस्ता है। आप उनको इतनी आसानी से बेदखल नहीं कर सकते। ये कई चार मीनार असेंबली हल्के में चार मीनार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और मीर चौक पुलिस की तरफ से कई बच्चों को, कई दुकान वालों को फलकनुमा कारवान और ऐसे नामपल्ली के इलाकों में कई नौजवानों को जेल को भेज दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जेल को भेजने का तरीका क्या वाजिबी है? कोई जायज तरीके से कारोबार कर रहा है तो उस पर जुल्म करना? मैं चैलेंज करके कहता हूं कि ट्रैफिक पुलिस झूठे केस, नाजायज केस बना के पुराने शहर में और खुसूसन मुसलमानों को जेलों में डाल रही है। हमेशा से पुलिस का रवैया तासुबाना रहा है। मैं डिप्टी कमिश्नर को चैलेंज करके बताया, आप हैदराबाद को आइए, हमारे एरिया में आइए, हम कहां झूठा केस बनाए हमको बताते और आप उस ऑफिसर को क्या एक्शन लेते। तो उन्होंने वादा किया, मैं सस्पेंड करूंगा। आए तो सही, लेकिन एसीपी ऑफिस में बैठ के वापस चले गए। झूठे केसेस के जरिए शरीफ लोगों को जेलों को भेजा जा रहा है। ये जितने इलाकों में, बहुत सारे इलाकों में फुटपाथों पे ट्रांसफार्मर लगा दिए, सेलफोन के जो डब्बे बिठा दिए और कई कंपनियां वाले फुटपाथों को इंक्रोच करे हुए हैं, उनको नहीं हटाया जाता। गरीबों का कारोबार है, उनको कारोबार से बेदखल किया जाता है। जारहाना तौर पर कल ही रात में पुराने पुल सिटी कॉलेज के पास बैरिकेडां लगा लिए, ट्रैफिक जाम है। आगे जाके देखे तो इंस्पेक्टर साहब चंद जवानों को लेकर चालानात करके खड़े हैं। ट्रैफिक के आला अहदेदार ने कहा 50 लाख व्हीकल्स है, 50 लाख व्हीकल्स है और 30 लाख लाइसेंस है। तो 50 लाख व्हीकल्स के लिए 50 लाख आदमियां होंगे उनको चालान करने के लिए। अरे एक आदमी के घर में 4-4, 2-2, 3-3 व्हीकल्स रहते हैं, लाइसेंस तो एक ही रहेगा। लेकिन उल्टी सोच के जरिए अवाम पर जुल्म किया जा रहा है, अवाम के साथ नाइंसाफी की जा रही है। मैं आपके जरिए स्पीकर साहब ये बताना चाहता हूं कि आज महकमे राशनिंग में जो बददुनियानियां हो रहे हैं, बराबर सही तरीके से अनाज नहीं दिया जा रहा है और आधार कार्ड किसी के पास नहीं है तो आधार कार्ड को बेस बनाकर उसके अनाज को रोका जा रहा है। आज राशन कार्ड पे हमको क्या मिल रहा है? 5 या 7 चीजें दी जाती हैं। राशन कार्ड पे 5 या 7 चीजें दी जाती है, जिसमें और थंब इंप्रेशन नहीं आ रहे बोल के उसको रोक दिया गया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैंने नुमाइंदगी की, उन्होंने बराबर लिख के दिया, जहां फिंगरप्रिंट जाने आ रहे वहां साइन करके दस्तखत पे राशन देने के लिए कहा। हम उनका लेटर ले आके पूरे दुकानों को दिए, लेकिन कमिश्नर सिविल सप्लाई बोलते कि हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर का कोई आर्डर नहीं है। आज भी कई दुकानों पर थंब इंप्रेशन नहीं आ रहा तो अनाज नहीं दे रही। इस पे आपको तवज्जो करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा, माजी में जिस अंदाज से राशन कार्ड को आज मनसूख किया गया, झूठे उन्वानात से, किसी के पास जाती मोटरसाइकिल है बोल के राशन कार्ड को कैंसिल करे, किसी को मकानात है बोल के, ये वेरिफिकेशन सही नहीं हुआ। घर बैठे लोगों के कार्डों को कैंसिल कर दिए। एक बड़ा रिव्यू रख के इसमें जो गरीब लोगों के राशन कार्ड है उनके राशन कार्ड को जारी करना चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं ये भी कहूंगा कि डबल बेडरूम मकानात की मुहिम हुकूमत की जानिब से शुरू की गई, लोगों ने इसका इस्तकबाल किया। इसी वजह से आपको बल्दिया के इलेक्शन में कामयाबी मिली, इसी वजह से अजला में भी कामयाबी मिली। लेकिन जिस अंदाज का ऐलान किया गया उस अंदाज की कार्रवाई अभी हमारे सामने नहीं आई। डबल बेडरूम के मकानात की फौरी तामीर करके तमाम इलाकों में लोगों को देना चाहिए। यकीनन हम चाहते हैं कि जो लोग बेघर हैं, मुसलमानों में जहां सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है कि तमाम तबकात में सबसे ज्यादा पसमानदा तबका मुसलमान है। 80% मुसलमान किराए के घरों में रहते हैं। ये डबल बेडरूम का मकान उनको मिलना चाहिए, तमाम को मिलना चाहिए जो इसके मुस्तहक है। इसकी इंक्वायरी करके उन लोगों को मकानात फराहम करना चाहिए, जिसके जरिए आपको ताईद, अवामी ताईद मिली और आपको कामयाबियां मिले। मैं उसके साथ ये भी कहूंगा कि निजामिया तिब्बिया कॉलेज, चार मीनार के पास जो निजामिया तिब्बिया कॉलेज है, उसकी इमारत की हालत बहुत खस्ता है। आज वहां पर पानी टपक रहा है अंदर।
अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हाउस में नुमाइंदगी की तो पहले की हुकूमत ने 4 करोड़ रुपए मंजूर किए उसको रेनोवेट करने के लिए, लेकिन वो काम की सही तौर पर सुपरवाइजिंग नहीं हुई, वो काम सही तौर पर नहीं हुआ, सिर्फ ऊपरी हिस्से का काम मुकम्मल हुआ, अंदरूनी हिस्से का काम छोड़कर गुत्तेदार ने कहा कि रकम खत्म हो गई, मजीद उसके पैसों की जरूरत है। तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने एमपी फंड से पैसे देने का ऐलान किया। मैं एमएलए बजट से भी देना चाहता हूं, और हमारे डिप्टी सीएम साहब भी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं भी अपने तरफ से इसमें जो भी बजट है मैं देना चाहता हूं। हेल्थ मिनिस्टर साहब भी थे, लेकिन आज तक वो बकाया काम का एस्टीमेट नहीं बना। आज वो हालत दवाखाने की इतनी बुरी है कि हॉस्टल में लड़कियां रहते हैं और हॉस्टल में बरकी का इलेक्ट्रिक का बिल वो लड़कियां देते हैं और कोई दवाखाना या गवर्नमेंट की तरफ से वो बिल पेमेंट नहीं होता। आज अंदाजा कीजिए, 4 मीनार दवाखाना जो एशिया का पहला तिब्बी यूनानी दवाखाना है, मरकज है, निजाम सरकार ने इसको तामीर किया था, लेकिन वहां पर उस इमारत को नुकसान पहुंच रहा है, अंदर वार्डों में पानी टपक रहा है, उसकी दुरुस्ती की बेहद जरूरी है ताकि बिल्डिंग की हिफाजत हो सके। मक्का मस्जिद में भी यही आलम है, छत बोसीदा हुआ, 2 साल से पानी पचर रहा है, हुकूमत की तरफ से मंजूरी हो गई, काम का आगाज नहीं हुआ। रमजान और बारिश का सीजन आ रहा है, वो काम का भी फौरी आगाज होना चाहिए। मक्का मस्जिद के उस्मानिया दवाखाने की बिल्डिंग तो अब तब पे है, मैं चाहता हूं कि हो सकता है कोई इंतजार में होंगे कि कब ये खत्म हो जाए बिल्डिंग, कब ये आसार खत्म हो जाए आसार खदीमा का। आज जितने खदीम इमारतें हैं उसका तहफ्फुज करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। महकमे आसार खदीमा इसकी निगरानी करते हैं। 4 मीनार के मीनारा तामीर हो रही, हर मीनार को एक मीनार को 2-2 साल में मुकम्मल किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे हैदराबाद का एक, तेलंगाना की एक शान 4 मीनार है, हजारों लोग 12 से 15 हजार टूरिस्ट लोग आते हैं रोजाना देखने के लिए, लेकिन 4 मीनार की तामीर में इंतहाई ताकीर हो रही है। आसार कदीमा की तरफ से कोई निगरानी नहीं है, हुकूमत के ऊपर उनका कोई प्रेशर नहीं है। 1 मीनार 2 साल में 2-2.5 साल में कंप्लीट हुआ तो अंदाजा कीजिए बाकी के 3 मीनार कब मुकम्मल होंगे। 4 मीनार के तहफ्फुज के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुताल्लिका आसार कदीमा के लोगों को इस ताल्लुक से तवज्जो दिलाएं। आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो 7 साला तकारीब हो रहे हैं उसके लोगों को तब्दील कर दिया गया। मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि साबिका लोगों को बहाल रखे, जिसमें उर्दू तहरीर है उर्दू को निकाल दिया गया उसमें से और लोगों को चेंज कर दिया गया। साबिका लोगों को बरकरार रखना चाहिए। और कॉलेज के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की इमारत, दीगर कॉलेजों की इमारत के लिए जो खराब हालत में है, एक खुसूसी बजट जारी करते हुए इन तमाम को जंगी पैमाने पर इसको मुकम्मल किया जाए। कॉलेज किसकी तरफ से सदी तकारीब हो रहे हैं? क्या कोई कमेटी है? क्या कोई देखने वाला है? कम से कम तमाम अवामी नुमाइंदों को उस कमेटी में शामिल रखना चाहिए। निजाम सरकार के खानदान के भी एक फर्द को उसमें शामिल करना चाहिए। उसकी 7 साला तकारीब के लिए 50वीं बरसी निजाम सरकार की परसों हुई, लेकिन सरकारी सतह पर इसका कोई ऐलान नहीं हुआ। और तमाम सरकारी तकर्रुरात में, इम्तिहानात में उर्दू को शामिल करने का एक देरीना मुतालबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करते आ रही है और करते आ रही है। हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारी रियासत में दूसरी सरकारी जबान है उर्दू, उसको उसका मुकाम मिलना चाहिए। उर्दू जबान की अमलवारी के लिए एक खुसूसी कमेटी इसकी इम्प्लीमेंट के लिए कायम करने का हमने मुतालबा किया था, वो करना चाहिए। तेलंगाना में उर्दू के तहफ्फुज के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं। आज जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां उर्दू को दूसरी सरकारी जबान के तौर पर पढ़ाना चाहिए। तेलुगु में और उर्दू में उर्दू के तहफ्फुज के लिए सेल कायम करना चाहिए। उर्दू के सरकारी मदारिस की हालत बड़ी खराब है। उर्दू और तेलुगु मीडियम के सरकारी स्कूलों में इस साल तो यूनिफॉर्म भी नहीं दिया गया। बच्चे और बच्चियां यूनिफॉर्म के मुंतजर थे, लेकिन अब इम्तिहानात होने को आगे उनको यूनिफॉर्म भी नहीं दिया गया। बारहा हुकूमत से मुतालबा करते आए हैं, वक्फ बोर्ड की जितनी औकाफी जायदाद है, हजारों एकड़ जमीन लोगों के कब्जे में है, इसको फौरी मुकम्मल करना चाहिए। पहाड़ी शरीफ बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह में आज रैंप बनाने के लिए हुकूमत के पास एस्टीमेट तैयार है, ताखीर हो रही है उसको मंजूरी के लिए, उसको फौरी मंजूर करना चाहिए। क्योंकि पहाड़ी शरीफ पर गरीब लोगों को जाने के लिए दुश्वारी होती है, माजूर लोगों को, ज़ईफ लोगों को, वो रैंप के जरिए अगर वो पहाड़ पर जाकर दरगाह की जियारत कर सकते हैं। ये काम में भी काफी देरी हो रही है। मैं चाहता हूं इस काम को भी जल्द से जल्द तकमील करके मंजूरी देकर इस काम का आगाज करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हुकूमत फौरी तवज्जो करके
اس ایریے میں جہاں چالانات کا اندھادھند چل رہا ہے، حیدرآباد شہر میں، راجندر نگر علاقے میں، مہیشورم میں اور ملک پیٹ، مہدی پٹنم، یہ تمام علاقوں میں آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ چالانات اسی علاقوں میں ہوتے. وجہ کیا ہے پتہ نہیں ان علاقوں کو جو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چالانات جاری رکھو لیکن عوام میں اعتماد رکھتے ہوئے چالانات رکھو. ٹریفک والے چالانات کر کے کاؤنسلنگ کے عنوان پہ بلا کے لوگوں کو جیل بھیج رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. میں چاہوں گا کہ حکومت اس پر سیریسلی لے کر اس مسائل کے پر توجہ دے اور سیکورٹی کے لیے موجود ہے. حادثات ہوتے ہیں، ڈاکٹر کی لاپرواہی سے لوگ مرتے ہیں لیکن پولیس کی موجودگی میں اس کیس کو دبایا جاتا ہے. بہرحال یہ بہت سارے مسائل ہیں اور عادل آباد، کریم نگر، نظام آباد، نرمل، یہ علاقوں میں عیدگاہ کے مسائل ہیں. اس عیدگاہ کے مسائل کے لیے ہم نے توجہ دلائی تھی حکومت کو کہ جہاں پر عیدگاہ ہے اور جہاں پر ناکافی ہے، کریم نگر، تانڈور، نظام آباد، عادل آباد، محب نگر، نلگنڈا، دیگر علاقوں میں عیدگاہ کی اراضی فراہم کی جائے تاکہ لوگوں کو اس تعلق سے استفادہ کرنے کا موقع ملے. میں چاہوں گا ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెట్ కావాలని చెప్పిండ్రు 100% कादरी साहब. मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कहीं टेक्निकल है तो प्रॉब्लम है तो 5 मिनट के वास्ते चार मीनार डिवीजन पे निकाला गया, उससे ज्यादा नहीं निकाला गया. उस्मानगढ़ के बारे में आप कह रहे थे ब्रेकडाउन है, बल्कि वहां ब्रेकडाउन नहीं है. और कभी कभी एलसी लेते हैं, आप लोग जानते हैं, कहीं रिपेयर करना पड़ता है तो उसके सिवाय कोई तकलीफ देने की सरकार का कोई मंशा नहीं है. बिल्कुल आप जिस तरह चाह रहे थे उस तरह पावर वहां सप्लाई करेंगे. आप तारीफ भी करें सरकार का, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं. और ट्रांसफार्मर रिपेयर शेड वहां पे कायम करना बोल के आप डिमांड करें, बिल्कुल मैं आपको वायदा दिलाता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपसे वायदा करता हूं कि जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर रिपेयर शेड वहां खोला जाएगा. और जो सबस्टेशन में बनाने हैं उन सबस्टेशनों पर मैं गौर करता हूं, मैं खुद गौर करता हूं और जल्द से जल्द वो सबस्टेशन भी बनाए जाएंगे. ఇట్లా చిన్న చిన్న సమస్యలను టెక్నికల్ పడేది ఈ రోజు ఆ పరిస్థితి లేదని చెప్పిండ్రు. వాటిని నేను థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. అధ్యక్ష स्पीकर साहब, आपके जरिए मैं वजीर आला के इल्म में बात लाना चाहता हूं कि आप अपने किसी आदमी के जरिए पावर का जो मैं मसला रखा था, पानी पावर ये दो चीज के लिए आप मुतमईन हो जाइए, किसी से इंक्वायरी कीजिए. मैं जितनी बातें बताया हूं बेहद मुश्किल में तकलीफ में हम लोग. एक चीज, दूसरी चीज ये जो फुटपाथों के लोगों को जेल को भेज रहे हैं ये सिलसिला भी खत्म होना चाहिए. ये दो ही बातें. बिल्कुल साहब, मैं खुद गौर करूंगा. और फुटपाथ पे लोगों को जेल को भेजना बिल्कुल गलत है, वो इनह्यूमन भी है. मैं होम मिनिस्टर साहब से कह देता हूं आज ही बिल्कुल इस पे होम मिनिस्टर साहब तवज्जो देंगे और वैसा नहीं करेंगे, अफसरों को हम बताएंगे, वैसा आगे नहीं होगा.